بلیٹن میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے ذکر تحریک عدم اعتماد سے پہلے حکومت اور اتحادیوں میں بڑھتی ہوئی بد اعتمادی کا۔ وفاقی وزراء آمنے سامنے آئے، حلیفوں پر گرجنے برسنے والے شیخ رشید احمد حلیفوں پر فقرے کسنے لگے، بولے عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا ہوں، ان میں سے نہیں جو 5 سیٹوں پر وزارت اعلیٰ کے لیے بلیک میل کرتے ہیں۔ ایسے میں چودھری مونس الہی بھڑک اٹھے، شیخ رشید کو اپنے بزرگوں سے پیسے لینے کا طعنہ دے ڈالا۔ چودھری شجاعت حسین کہتے ہیں کشمکش کا شکار نہیں، کل تک حتمی فیصلے کا عندیہ انہوں نے دے دیا۔ میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں چٹان کی طرح، میں ان لوگوں کی طرح نہیں ہوں 5 ووٹیں ہیں اور صوبے کی چیف منسٹری کے لیے بلیک میل کر رہے ہیں۔ سیاسی گرما گرمی میں وفاقی وزراء بھی آمنے سامنے آ گئے۔ حریفوں پر لفظی گولہ باری کرنے والے شیخ رشید نے حلیفوں کو بھی نہ بخشا۔ پنڈی بوائے نے نام لیے بغیر مسلم لیگ قاف کو طعنہ دے ڈالا۔ میں ان لوگوں کی طرح نہیں ہوں 5 ووٹیں ہیں اور صوبے کی چیف منسٹری کے لیے بلیک میل کر رہے ہیں، چیف منسٹری کے لیے بلیک میل کر رہے ہیں۔ وزیر داخلہ کا بیان مسلم لیگ قاف کو ایک آنکھ نہ بھایا۔ وفاقی وزیر مونس الہی نے ٹویٹر کا محاذ سنبھال کر جوابی وار کیا۔ مونس الہی نے 2 ٹوک جواب میں کہا کہ میں شیخ صاحب کی عزت کرتا ہوں، لیکن وہ بھول رہے ہیں کہ اسی جماعت کے بزرگوں سے وہ زمانہ طالب علمی میں پیسے لیا کرتے تھے۔ عدم اعتماد کے ہنگامے میں مسلم لیگ قاف مرکزی نگاہ بنی ہوئی ہے۔ وزیر اعظم اتحادی جماعت سے ملاقات کر چکے ہیں۔ اپوزیشن قائدین نے بھی حمایت کے لیے قاف لیگ کے در پر پھیرے لگائے۔ ابھی تو برچی خانے میں سامان اکٹھا ہو رہا ہے، لیکن چودھری برادران نے کس کو ہاں کرنی ہے، اس کے لیے پارٹی میں مشاورت جاری ہے۔ اتوار کے اجلاس میں حتمی فیصلے کا امکان ہے۔ 5 ووٹیں ہیں اور صوبے کی چیف منسٹری کے لیے بلیک میل کر رہے ہیں۔ ایسے میں شیخ رشید کا بیان حکومت کے لیے مشکل کا باعث نہ بن جائے۔ مریم نواز نے ٹویٹر پر حکومت کے خلاف محاذ سنبھال لیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے ایسی حکومت کا کیا فائدہ جس میں اپنے ہی اراکین کو نااہلی اور گھیراؤ کی دھمکیاں دے کر زبردستی ساتھ رکھنے کی سرتوڑ کوششوں کے باوجود ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو۔ اتحادیوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کے بعد بھی آپ پسپا ہو رہے ہو۔ مریم نواز حکومت کے خلاف ٹویٹر کے محاذ پر سرگرم، آپ اتحادیوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کے بعد بھی پسپا ہو رہے ہیں، ایسا لکھا انہوں نے۔ تحریک عدم اعتماد ناکام بنائیں گے، اپوزیشن کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، پارٹی سے غداری کرنے والا قانون کے کٹہرے میں آئے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کی وفاقی وزراء اور ارکان اسمبلی سے ملاقاتیں، عوام کے ساتھ رابطہ مضبوط کرنے کی ہدایت کر دی۔ کہا ڈی چوک پر جلسہ تحریک عدم اعتماد سے 1 دن پہلے ہوگا۔ وزیر اعظم کل حافظ آباد میں سیاسی پاور شو کریں گے۔ چودھری پرویز الہی سے ملاقات بھی ان کے شیڈیول کا حصہ ہے۔ اعتماد کامیاب ہوگی، عدم اعتماد کامیاب ہوں گے۔ عدم اعتماد کامیاب ہو چکا ہے۔ ہاتھ میرے آزمائے ہوئے۔ تحریک عدم اعتماد ناکام بنائیں گے، اپوزیشن کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، وزیر اعظم ایک بار پھر پر اعتماد۔ ایک ان سوئنگ یارکر سے تینوں کی وکٹیں انشاءاللہ گراؤں گا۔ عمران خان نے بنی گالہ میں سینئر پارٹی رہنماؤں سمیت کئی ارکان اسمبلی سے ملاقاتیں کی۔ ان کا کہنا تھا پارٹی سے غداری کرنے والوں کے خلاف قانونی ایکشن ہوگا۔ اعتماد کے حوالے سے پرائم منسٹر آف پاکستان کی کیا باڈی لینگویج ہے، کیسا انداز ہے؟ پرائم منسٹر بہت کانفیڈنٹ ہیں۔ اپوزیشن نے وہ کام کیا ہے کہ جو شاید ہماری خواہش ہونی چاہیے تھی، یعنی کہ انہوں نے آپ بہن مجھے مار والا کام کیا۔ وزیر اعظم کی شاہ محمود قریشی، علی زیدی اور شہزاد وسیم سے بھی الگ الگ ملاقاتیں ہوئیں۔ شاہ محمود قریشی نے وزیر اعظم کو اراکین اسمبلی سے رابطوں پر بریفنگ دی۔ عمران خان نے منتخب نمائندوں کو عوام سے اپنا رابطہ مضبوط کرنے اور کارکنوں کو متحرک کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا حکومت عوام کی پریشانیوں سے پوری طرح آگاہ ہے، عوام کو مہنگائی کے اثرات سے بچانے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اتوار کو وزیر اعظم کی اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی سے بھی ملاقات ہوگی۔ ادھر حکومت تو ادھر اپوزیشن بھی ایکٹیو ہے۔ پیر کو بڑے اپوزیشن رہنما شہباز شریف کی رہائش گاہ پر جمع ہوں گے۔ کھانے کی میز پر عدم اعتماد کے حوالے سے فائنل مشاورت کی جائے گی۔ شاہد خاقان عباسی نے بڑا دعویٰ کرتے ہوئے کہا 22 حکومتی ارکان ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں۔ شہباز شریف نے مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس اتوار کو طلب کیا ہے۔
वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि मैच अब ऑन हुआ है, कप्तान की टीम मैदान में आ गई है, मैच किसके दरमियान है असद उमर ने ये भी बता दिया है। ऑन हो गया है, कप्तान की टीम जो है वो ग्राउंड में आ गई है और ये भी मैं बता दूं ये मैच अदम एतमाद की तहरीक का नहीं है, ये मैच है पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी का और इंशाअल्लाह ताला कप्तान की लीडरशिप में ये मैच जीतेगी इंशाअल्लाह। MQM पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा सुहेल मंसूर कहते हैं शेख रशीद के फैसलों पर अमल करने के पाबंद नहीं, राबिता कमेटी का फैसला MQM का फैसला होगा। साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल ने भी वाज़ेह जवाब दे दिया, कहा बलोचिस्तान अवामी पार्टी अपना फैसला खुद करेगी, शेख रशीद उनके फैसले नहीं करेंगे। पार्टी बाप डंके की चोट से इमरान खान के साथ है। वजीर दाखिला शेख रशीद के बयान ने सियासी पारा हाई कर दिया। MQM पाकिस्तान का वाज़ेह जवाब आ गया। ख्वाजा सुहेल मंसूर कहते हैं शेख रशीद अच्छी तरह जान लें, हम किसी के इशारों पर नहीं चलते बल्कि अपने फैसले खुद करने के पाबंद हैं। ये समझ में नहीं आ रहा कि MQM उनके साथ क्यों खड़ी है और वो किस तरह ये दावा कर रहे हैं कि मैं MQM के साथ खड़ा हूँ। MQM एक अपना फैसला करेगी, शेख रशीद साहब के फैसलों के ऊपर अमल दरामद करेंगी, जो राब्ता कमेटी फैसला करेगी वही MQM का फैसला होगा। बलूचिस्तान से भी रद्द अमल आ गया। साबिक वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा बलूचिस्तान अवामी पार्टी अपना फैसला खुद करेगी, शेख रशीद नहीं। जाम कमाल का कहना था BAP किसके साथ है किसके साथ नहीं, जल्द पता लग जाएगा। अभी आपको बताएं कि माइनस बुजदार रोकने के लिए वज़ीर आला पंजाब यकीन दहानिया प्लस कराने लगे हैं। 3 रोज़ में तरीन मुस्लिम लीग नून और हम ख्याल ग्रुप समेत 80 से ज़ायद अरकान असम्बली वज़रा और मुशीरों से मुलाकातें की। लाहौर से मोहसिन बिलाल की रिपोर्ट। वज़ारत आला की कुर्सी आवाज देने लगी, बुजदार उसको बचाने के लिए इन एक्शन। 3 रोज में 80 अरकान से मुलाकातें। ऐवान वज़ीर आला में मुलाकातों का सिलसिला जारी है। उस्मान बुजदार हर ग्रुप के हर रुकन को मिलने के लिए कोशा। गुज़िश्ता रोज 10 घंटे मुलाकातें जारी रहीं। ऐवान वज़ीर आला के मुताबिक तरीन ग्रुप के फैसल जपुआना, खुरम लगारी, असलम भरवाना, हम ख्याल ग्रुप के तैमूर लाली, कर्नल रिटायर्ड गजनफर अब्बास और गजनफर अब्बास छीना मुलाकात करने वालों में शामिल थे। उन सब से वज़ीर आला ने एतमाद इकट्ठा किया। वज़ीर आला से अरकान के अलावा सूबाई वज़रा और मशीरों ने भी अलग-अलग मुलाकातें की, जबकि नून लीग के मुनहरिफ अरकान में से मियाँ जलील शरकपुरी, अजहर चांडिया और अशरफ अंसारी भी मुलाकातियों में शामिल थे। मोहसिन बिलाल, समा, लाहौर। पंजाब के वसीम अकरम प्लस को माइनस करने का मिशन। जहांगीर तरीन की रिहाइशगाह पर तरीन ग्रुप का अहम इजलास पीर को होगा। विफाक में तहरीक अदम एतमाद पर भी मुशावरत इस बैठक में की जाएगी। देखते हैं ऐसे कौन से 10 से 12 माई के लाल हैं जो पार्टी छोड़कर ऑपोजिशन के साथ असेंबली हॉल में जाते हैं। गवर्नर सिंध ने खबरदार कर दिया है। स्पीकर असद कैसर ने दावा किया है कि PTI अरकान चट्टान की तरह वजीर आजम के साथ खड़े हैं। वजीर खारजा कहते हैं कि जिसने पार्टी की खिलाफ वर्जी करनी है वो इस्तीफा देकर कहीं और चला जाए। मुझे कोई तरीन ग्रुप दिखाई नहीं देता, मैं उसको अहमियत नहीं देता। वज़ीर आज़म ने जो पैगाम दिया था वो मैंने अलीम खान साहब को पहुंचा दिया। फैसला अलीम खान साहब ने करना है कि वो क्या चाहते हैं। अदम एतमाद का हंगामा, खिलाड़ी भी फ्रंट फुट पर आ गए। स्पीकर असद कैसर को वज़ीर आज़म की जीत का पूरा यकीन, कहते हैं इत्तेहादी भी मायूस नहीं करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNAs है, जो पार्लियामेंटेरियन है, वो किसी भी सूरत में अपने लीडर को नहीं छोड़ेंगे। वो अपने लीडर के साथ चट्टान की तरह खड़े होंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारे इत्तेहादी इमरान खान के साथ खड़े होकर इस अदम एतमाद को नाकाम बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। वजीर खारजा ने हरीफों के साथ साथ दोस्तों को भी पैगाम दे दिया। वो इमरान खान को आईनी तौर पर, इखलाकी तौर पर वोट देने का पाबंद है। कोई सौदा कर भी देता है तो फिर उसे इखलाकी तौर पर अपनी सीट से इस्तीफा देना चाहिए। गवर्नर सिंध भी पुरुमीद हैं कि इत्तेहादी इस बार भी मायूस नहीं करेंगे। उन्होंने दाएं बाएं का सोचने वालों को भी खबरदार कर दिया। देखते हैं कि कौन से ऐसे 10 या 12 माई के लाल हैं जो हमारी पार्टी को छोड़ के वो अपोजिशन के साथ उस असेंबली हॉल के अंदर एंटर होते हैं। मोहसिन सिलाही ने, चौधरी साहब ने बार बार वज़ीर आज़म को यकीन दिलाया कि हम मजबूती से आपके साथ खड़े हैं। गवर्नर सिंध ने वाज़ेह अंदाज में बताया कि अपोजिशन की तहरीक के बाद हुकूमत होम्योपैथिक मूड से निकलकर सर्जरी मूड में जाएगी। गर्म सर्द साथ साथ सियासी मैदान में शदीद लफ्जी जंग के बाद
हुकूमत लचक का मुजाहरा करने लगी। वफाकी वज़रा मामलात को ठंडा करने और सुलह सफाई की बातें करने लगे। नून लीग ने दो टोक कह दिया, कोई बातचीत नहीं होगी। जो मेरी बंदूक की नशिस्त पे बड़ी देर से उसके ऊपर आया हुआ वो है आसिफ अली जरदारी, शोबाज जूते पॉलिश करने वाला। अपनी जुबान को लगाम दो, वगरना हमें फिर लगाम देनी आती है, लगाम देनी आती है। शदीद सियासी तल्खियों के बाद सुलह सफाई की आवाजें भी आने लगी। कल तक कुचलने की बातें करने वाले वजीर दाखिला शेख रशीद आज कह रहे हैं कि ठंडे प्रोग्राम की तरफ जाना चाहिए। हमें ठंडे प्रोग्राम की तरफ जाना चाहिए, सुलह सफाई की तरफ जाना चाहिए। ये ना हो कि तुम 10 साल तक लाइन में लगे रहो और फिर 10 साल तक सिलेक्शन की बात करो। बेहतर है 1 साल इलेक्शन का इमरान खान के साथ इंतजार करो और इलेक्शन की तैयारी करो। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी को भी दहकते सियासी माहौल की फिक्र होने लगी। कहते हैं जमहूरियत इतनी तकसीम का निज़ाम नहीं कि किसी वजह से बात करना ही मुश्किल हो जाए। बोले लड़ना मुश्किल नहीं, लेकिन उसके बाद सुलह करना मुश्किल हो जाता है। हुकूमत में लचक आई मगर नून लीग का गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा। मरियम औरंगजेब ने साफ कह दिया कि इमरान खान को समझाएं, उन्होंने सियासत को दुश्मनी में बदला। बातचीत सियासतदानों से होती है, बदमाशों से नहीं। सियासत में गंद और गिलाजत इमरान साहब ने डाला हुआ है। अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग से पहले सियासी हुटिंग जोबन पर आ गई है। चोर डाकू, तू तड़ाक, पागल, खतरनाक और बाउले जैसे अल्फाज की भरमार हो गई है। एक तरफ खतरनाक डीजल, एक होता है पागल, एक उससे जरा ऊंचा मर्तबा है भावला। बिल्कुल वो कैफियत हो गई है उसकी। ड्रामाबाज, शोबाज। वार्निंग देना चाहता हूँ, शहबाज शरीफ टाई कमीज और सूट पहन के अंग्रेजी बोल के अपनी जुबान को लगाम दो, मंजी थले डांग फेर। वो आसिफ जरदारी मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी। बस अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं वो बिलावल बच्चे की क्या बात करूं? हम बच्चे नहीं रहे। गालियां देते हो, नाम बिगाड़ते हो, तुम्हें चेहरा छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। तो मैं आपके साथ करूंगा। एक इन स्विंग यॉर्कर से तीनों की विकेटें इंशाल्लाह गिराऊंगा। तू है कौन? तू होते कौन हो? प्राइम मिनिस्टर उनका बाप होता है। फरूख नसीम तकरीब में गए। तहरीक अदम एतमाद के वोट में पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने पर कार्रवाई कैसे होगी, ये सवाल वफाकी वजीर कानून से बार बार किया गया, मगर वो हर बार नो कमेंट्स कहकर जवाब टालते रहे। सहाफ़ियों को खुद ही आर्टिकल 63A पढ़ने का मशवरा भी देते रहे। फरूख नसीम साहब ये बताइएगा कि कहा जा रहा है कि हुकूमत के अरकान कौमी असम्बली के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाले दिन अगर असम्बली पहुँचेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो क्या आइन क्या कहता है कि सिर्फ असम्बली में दाखिल होने पर भी कार्रवाई हो सकती है या वोट देने के ऊपर हो सकती है? आइन का आर्टिकल 63 कैपिटल A है, वो आप पढ़ लीजिए, अंग्रेज़ी में भी पढ़ लीजिए, उर्दू में भी पढ़ लीजिए। जो भी वो कहता है वही आइन है, उसी को फॉलो करना है। आप बता दें क्या है? नो फर्दर कमेंट्स। तो सर ये फरमाइएगा कि आइन का जो 63A जो है वो स्पीकर, कानूनी माहिरीन ये कह रहे हैं कि स्पीकर को वो इख्तियार नहीं देता कि वो किसी को पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट करने के लिए रोक सकता है। हाँ, ये जो एक्ट है ये कमिट करने के बाद फिर कोई तहरीक के बाद राय शुमारी के बाद कानूनी कार्रवाई होगी। तो 63A बता रहा हूँ ना आपको। 63A में चन्नर साहब आपसे गुजारिश करूंगा कि भाई को ज़रा 63A की कॉपी ज़रा दें, पढ़ लें। क्या है? नो कमेंट्स। जिस दिन हुकूमत डी चौक पर जलसा करेगी उसी दिन उसी मकाम पर हम भी जलसा करेंगे। जाले रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं कि स्पीकर कौमी असम्बली जानिबदार हैं। वज़ीर आज़म के बाद स्पीकर और उसके बाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अदम एतमाद आएगी। आ गया कि अदारे न्यूट्रल है, तो ये उनको जवाब दिया, उनको जानवर बनाने की कोशिश की। हमने तो वाज़ेह कर दिया है, लीडरशिप ने ये कह दिया है जॉइंटली कि जिस दिन वो जलसा करेंगे उसी दिन उसी जगह पे हम जलसा करेंगे। स्पीकर को इस्तीफ़ा देना चाहिए। स्पीकर बिल्कुल एक पार्टी बना हुआ है, जो रोल होना चाहिए। इसने माजी के स्पीकर्स को जो थे या नहीं थे शर्मसार कर दिया है, लफ्ज़ स्पीकर को शर्मसार कर दिया है।
पंजाब इमीडिएटली इसके बाद होगा और उसके बाद KPK और फिर हम तो हाजिर हैं। प्रेसिडेंट तो नेचुरली इम्पीचमेंट में जाएगा ना, उसको कैसे रहने देंगे। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान उज़्मा बुखारी कहती हैं, वज़ीर आला को मिलकर आने वाले हमसे भी राबिते में हैं। हमारी वजह से लोगों की कांपे नहीं टांगती बल्कि टांगे कांपती हैं। उस्मान बुज़दार साहब कब तक सिर्फ आपकी शक्ल दिखाकर जो है वो म्यूट फिल्म चलाई जाएगी और कहा जाएगा इसको शहबाज शरीफ मान लो। उसकी कुर्बानी को भी जो है अभी तक जायज नहीं समझा जा रहा। मेरे प्यारे टोट बटोट भाई, आपको वज़ीर आला लगाया गया था, अवाम के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ आपने करना था। शेख रशीद साहब को कुछ पता लग गया है, कुछ सुनगुन मिल गई है, इसलिए उनकी दुम पे आज पैर आया हुआ था। पहले तो वो कुचल दूंगा तो फलाना कर दूंगा, तो वो आज सुलह जो पे आए हुए थे और उन्होंने कहा कि मैं वो ब्लैकमेलर नहीं हूँ जो 5 सीटों वाले जो है वो पार्टी जो है वो वज़ारत आला मांगे। परवेज़ इलाही साहब को कहना चाहती हूँ, अजली लोटा जो खुद एक सीट के ऊपर इस वक्त पाकिस्तान का वज़ीर दाखिला है, वो आपके बारे में ये कह रहा है। तहरीक अदम एतमाद पर हिमायत की ख्वाहिश, वज़ीर इत्तला सिंध सईद गनी ने MQM को तनकीद का निशाना बनाने के बजाय उनका मैंडेट तस्लीम करने का मशवरा दे डाला। सियासत में कोई मुस्तकिल दोस्त होता है न दुश्मन, ये बात पाकिस्तान की सियासत पर फिर सादिक आ रही है। कल तक पीपल्स पार्टी के सईद गनी MQM पर तनकीद का कोई मौका जाने नहीं देते थे। MQM को ये बता दें कि तुम कराची के कभी भी हामी नहीं थे, तुम कराची के दुश्मन थे, कल भी थे, तुम आज भी हो। कराची को उस वक्त से कंपेयर करें जब MQM का यहाँ पे उरूज था, जब वहाँ दहशतगर्दी करते थे। भाई MQM कराची के शहर की खैरख्वाह नहीं है, खैरख्वाह नहीं है। लेकिन अब सूरत-ए-हाल मुख्तलिफ है। पीपल्स पार्टी को तहरीक अदम एतमाद पर MQM की हिमायत दरकार है। यही वजह है कि सईद गनी के लहजे की तलखी अब मिठास में तब्दील हो चुकी है। MQM का जेन्युइन वोट है शहरी इलाकों में, और अगर उनका कहीं मैंडेट है तो हमें उसको तस्लीम करना चाहिए। और MQM के वो लोग जो पॉलिटिकल लोग हैं, जिनके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं है, जिनके ऊपर इल्ज़ामात नहीं हैं, जो एक अच्छी सियासत करना चाहते हैं, उनके साथ ताल्लुकात और राब्ते रहना चाहिए। एक पॉलिटिकल रोल MQM का बनता है तो वो रोल हमें उनको देना चाहिए। MQM के रहनुमा भी जियालों के इन दाव पेच से खूब वाकिफ हैं। एक तरफ जहां MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो दूसरी जानिब वफाकी वजीर अमीनुल हक ने पीपल्स पार्टी को आड़े हाथों ले लिया है। वज़ीर आला साहब तासुब के नाम पर, सियासी इंतकाम के नाम पर ऐसा ना करें कि 12 अरब रुपए वफाकी हुकूमत ने उस पर खर्च कर दिया। सूबाई हुकूमत ने नॉट अ सिंगल पेनी, आई रिपीट, नॉट अ सिंगल पेनी इन्वेस्टेड इन द K4। शर्म का मामला, बेशर्मी की इंतहा है। MQM ने ताहाल ये ऐलान तो नहीं किया है कि तहरीक अदम एतमाद की हिमायत करनी है या मुखालफत, लेकिन अमीनुल हक के तंज भरे जुमले कुछ तो इशारा दे रहे हैं। कराची की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने समा के सीनियर प्रोड्यूसर अतहर मतीन के कत्ल में मुलव्वस मुल्जिम अशरफ बंगलजई का 2 मुकदमात में 15 मार्च तक जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। पुलिस की जानिब से रिपोर्ट अदालत में जमा कराई गई, जिसमें बताया गया है कि मुल्जिम अशरफ बंगलजई की निशानदही पर आला कत्ल बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने गैर कानूनी असलहा रखने पर मुल्जिम अशरफ के खिलाफ नया मुकदमा दर्ज कर लिया। इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने दोनों मुकदमात में मुल्जिम का 15 मार्च तक जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए 16 मार्च को दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया। आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद और उसके सेल्स पार्टनर्स की जानिब से प्रॉपर्टी एक्सपो 2022 का इनेकाद किया गया। शहजाद अली की रिपोर्ट। पाकिस्तान में रियल एस्टेट इंडस्ट्री की तरक्की का मिशन। इस्लामाबाद के निजी होटल में मुनक्कदा 2 रोज़ा प्रॉपर्टी एक्सपो में पार्क व्यू सिटी मरकज़े निगाह बन गया। मकसद है तामीराती शोबे में दिलचस्पी रखने वालों को रिहायशी व कमर्शियल मंसूबों में सरमायाकारी के बेहतरीन मौके फराहम करना। शुरा ने न सिर्फ पार्क व्यू सिटी इंतजामिया की काविशों को सराहा, बल्कि मुख्तलिफ मंसूबों में खुसूसी दिलचस्पी का इजहार भी कर दिया। रियल एस्टेट इंडस्ट्री पाकिस्तान में फ्रॉम लास्ट 5-6 ईयर्स ये बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रही है। उसकी वजह है कि डिफरेंट गवर्नमेंट्स ने डिफरेंट एमनेस्टी दी। इस गवर्नमेंट में इमरान खान साहब ने जो एमनेस्टी दी थी रियल एस्टेट सेक्टर में, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इसमें फ्लरिशिंग आई। इनकी लीगल टीम इज़ ऑन इंटरनेशनल लेवल, तो वो ट्रस्ट हमारे साथ वो बिल्ड हो चुका है और इंटरनेशनली इन्होंने एक्सपोज भी किए हैं एंड इसके ज़रिए पीपल आर वेरी मच इंटरेस्टेड। मैं स्पेशली पार्क व्यू को देख रहा हूँ और इंशाल्लाह बहुत अच्छी ग्रोथ है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। नुमाइश के मुंतज़मीन कहते हैं पार्क व्यू सिटी में दुनिया की तमाम जदीद तरीन सहूलियतें मौजूद हैं। रियल एस्टेट इंडस्ट्री के फ़रोग के लिए अथॉरिटी के क़याम का मुतालबा भी कर दिया। पार्क व्यू जो हमें एक ऐसी लोकेशन लगी जिसको हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर
ایک ڈیولپمنٹ ہے. سو وی نیڈ اے ریگولیٹری اتھارٹی بیسیکلی جو کہ انشور کر سکے کہ جو بلڈرز اور ڈیولپرز اپنے کلائنٹ سے کمٹمنٹ کر رہے ہیں وہ فلفل کریں, پوری کریں. پراپرٹی ایکسپو 2022 میں ملکی و غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے مناسب سرمایہ میں پرکشش اسکیمیں موجود ہیں. کیمرمین چنگیز چودھری کے ساتھ شہزاد علی, سما, اسلام آباد. ہیڈ لائنز ہوں گی بریک کے بعد. دیکھتے رہیے سما.